we are together and we are enjoying, we are having fun. It's a different kind of fun, but nonetheless it's a fun. Before I invite Samniji, I know many of you have come to JVP probably first time, and many have you been here before. The right way to do Vandana to Samniji is Vandami Namansami Samniji. So those of you who didn't know and you are feeling awkward how to do Vandana, I just wanted to let you know Vandami Namansami Samniji. So I'll ask Nikhil to invite Samniji to come to the Pyramid Hall. And when they come and when they get seated, they should be sitting there. Those who can stand up will stand up and we'll together say Vandami Namansami Samniji, and then we'll start the program. Any questions before I invite Samniji? If none, Nikhil, you can invite Samniji. There are two exits in this hall, one on the front left of your side, and one from the side you came. Please put your cell phones on vibration mode as a courtesy to everybody else. You know where the restrooms are and where the fountains are, so I'm sure you can use them as needed. And it's 1:45. What time would you like to be able to start? We will do the program accordingly. So I was hoping maybe 45 minutes here, huh? Is that good? Okay, so 1:45, so we'll try 2:30. Huh? Will that give you enough time to? Also the tour of the facility. Yeah, we'll do the tour of the facility as well. Okay. So after the program is over, we'll do the tour of the facility. During the program, I'll explain to you what this facility has, and then we'll go see the facility. Good point. Three, two, one. Vandami Namansami Samniji. Please be seated. Just a quick introduction of JVV. JVV stands for Jain Vishwa Bharati, which is a university. Vishwa Bharati is a university. This university in Lucknow, Rajasthan, where Jains can get their higher degree, masters, PhD. Samnijis, they graduate from those universities and they carry this task of being able to make themselves available to Jain Sravaks throughout the world, because as you know, Jain sadhus cannot travel very far, and then eventually their goal is to become a sadhvi and achieve what they are trying to achieve in their life. Jain Vishwa Bharati Houston has been here for 15 years. It started in 1999. This particular center has been here for 5 years. Our 5th anniversary is on Sunday, October 12th. So if you are in this area, or if you can come, please do come. I know many of you were here when the center inauguration was there. Many came from Dallas, I know. So very unique moment for us. This facility is set up on 2 acres of land made up of 2 buildings. One is this pyramid hall, which is about 3,600 square feet. But 100 people can do yoga and meditation at the same time. I know many of you wanted to do meditation, but after lunch it's kind of hard to do meditation.
So next time when you are in Houston, every Saturday morning we have yoga meditation session, and once a month we have a long duration, starting at 9, ending at 1, long duration yoga and meditation session. And that information is available on our website, jvhouston.org. The building where we were there before, it's a 2-story building. It has 4 Gyanshala room upstairs, there's a library upstairs, there is a guest quarter upstairs, Samniti's quarter, kitchen, so about 10,000 square feet with 70 parking spots. We do bring a lot of activities. One activity which really fresh in my mind is what we did last week. We had blood donation drive here at JVB Houston, which was part of a global drive to collect blood on the same day. It was Acharya Sri Tulsi, one of our Jain Guru, their birth centennial. Globally throughout the world, we raised 100,000 units of blood in one day, which is Guinness Book of World Records. The Samniji sitting on your left hand side as you face the podium are Samni Jain Priyaji, and she became Samniji in 1988. She is a graduate from the Ladu University. Her family is deep devout of Jainism. At least 15 members of her family are either monks or nuns. She is expert in conducting meditation. Actually, on JVB every program, she is the one who conducts meditation. Like this morning also, we had a meditation session and Samniji conducted that. Sanmat Pragyaji on your right hand side, she became Samniji in 1990. She also graduated from Ladu University, but before that, she did her master's in Sanskrit from Ajmer University. She is one of the most senior Samnijis in Houston. She was one of the first ones to come here, and she's been to Houston many times. Both Samnijis have traveled throughout the world. Samni Sanmati Pragyaji even met with Pope John Paul in Vatican City during one of her trips there. So with that, I know we have very well-known and respected people from both sanghs here. I will not be taking name of all of them just because in the interest of time, but I like to invite the people who have taken leadership role to bring the sanghs here. I appreciate it from the bottom of my heart. Jai Bhai said the same sentiment last night. We are just fortunate that you came to our city. Couldn't have been better. We enjoyed having you. So thank you very much for coming here. And Samniji reminded me that Samnijis are here to support not only Houston, but every city, every community. So if you ever like to bring Samniji to Dallas or Austin, feel free. Just let us know. We plan it accordingly, and Samniji can come to Dallas, Austin, like that. In fact, Samniji, during one of her trips, she was invited into the inauguration or opening ceremony of Senate in Ohio, and she went there for prayer. The Samniji is available for trips anytime. I'd like to invite Balbhai to come and say a few words on behalf of Jain Sangh of Dallas and North America. Please, Balbhai and Vinita ji, आप कहाँ हैं? So, anyways, please come over. Sorry, Veena ji, yeah, I'm sorry. Jai Jain. Somebody. Well, I just want to, I won't take much of your time. We are
from Dallas. Son is here to celebrate Chaitya Paripati, which is in essence a bonding. It's a religious bonding of the four sons. The four sons being Austin, Houston, Dallas, and JVB. So thank you for having us. It's been a Chaitya Paripati. It's been a very sharing thing. Okay, to share Swadhyaya, the Bhakti, and all the hospitality, and forgive me, but I have to share this with you. In Dallas, you don't only have एक कार्ड मैंने हमारे पास 9 कार्ड and we move forward. She wants to also share how we started the senior forum. It's been 2 years ago. We started on a very small scale, and we have had volunteer work. We collect shoes for the organization called the Earth Workers. We do picnics, and we do call the accountants, lawyers, and all that. We have Swadhyaya on a very regular basis. So thank you for having us. And I know you all guys have worked very hard at all this. Houston son, JVP son, and I don't have words to express my gratitude. And with that, I would also like to just give a small token of our thanks from the Senior Forum of JSNT. And I would like to have that please. And one more check from one of our members. Thank you. Thank you. Jain Center and JVB Houston have welcomed many Chaitya Paripati. As I said last night, I believe 4. JVB also has been part of those 4 Chaitya Paripati. It's always good to welcome so many people to our city. I'd like to say one thing about the Dallas Sun. They've been so supportive of JVB that last year when we had the play Raja Harishchandra, we almost enacted the play in Dallas. Unfortunately, the timing didn't work out, but otherwise we were going to have second show in Dallas. It's never late. Next time we will plan early and look forward to having multiple shows in different cities. Also, Dallas Sun, Austin Sun, San Antonio Sun. All of them are big participants in our annual family camp, which we have every year. This year it was in Belleville, Texas. We had more than 100 people, almost 50 of them from out of town, including those cities. So I know there are many opportunities for us to come together, and we should enjoy those opportunities coming together. I'd like to invite Suresh Bhai and Asha Ben from Austin Sun to please come and say a few words. Yeah, please come on. You energized that last night, so cannot miss that opportunity.
the way they inviting us, the way they treating us. Look like I'm losing my mind. I cannot find the words. What I say. This is my first experience, by the way. But it looks like I'm falling in love. Maybe it will continue. But so far, thank you very much. And again, hosting me as a part of my son. And let's see what I can do in the future. But so far, thank you very much. I don't want to take you too much time. And hope to see you again. Thank you. They're not happy with what I did. Okay, give me a chance. Yeah. Kamlesh Bhai and Sneha Ben, thank you for supporting Suresh Bhai and Asha Ben so that they didn't feel like they will be driving by themselves. And then Naresh Bhai and Punita Ben, thank you. You were in Houston for coming over. JVP directors are here, Aman Patel, Sampaji Rampuria. You met our JVP president Nikhil Jain last night. A lot of volunteers work behind us. They're so happy that you came. Without much ado, I know you're waiting for Sunny to say a few words. So, आचार्य महाश्रमण के चरणों में वंदन, वंदामि नमस्सामि Sunny ji, and Jai Jinendra everyone. I like to stop here and ask Sunny ji to take over and share her thoughts with us. आराध्य को वंदना। आदरणीय सन्नी जी, बाहर से पधारे हुए मेहमान, जय विश्व भारती के लिए आप मेहमान हैं आज। एक बीत रात की स्थिति में एक भजन गाकर के फिर मैं अपनी बात शुरू करूंगी।
तुम वाणी सुन रोहिणी ऐसा, तुम वाणी सुन रोहिणी ऐसा, बंधन मुक्ति वारे मेरे मन की कूड़ कपटता, मेरे मन की कूड़ कपटता, माया आसक्ति हरे, माया आसक्ति हरे। नमो नमो हरिहं, हे नमो नमो भगवन्, हे नमो नमो हरिहं, हे नमो नमो भगवन्। तुम चरणों में चंद्रकोशिया, तुम चरणों में चंद्रकोशिया, शांत सुतोष भरे मेरे मन के ताप तमस में, मेरे मन के ताप तमस में दीपक बन उजले, दीपक बन उजले। हे नमो नमो हरिहं, हे नमो नमो भगवन्, हे नमो नमो हरिहं, हे नमो नमो भगवन्। तुम आभाने आकर प्राणी, तुम आभाने आकर प्राणी, वैर जैर बिसरे मेरे मन के कोने कोने, मेरे मन के कोने कोने, तेरी समता झरे, तेरी समता झरे। हे नमो नमो हरिहं, हे नमो नमो भगवन्, हे नमो नमो हरिहं, हे नमो नमो भगवन्, हे नमो नमो हरिहं, हे नमो नमो भगवन्। आप लोग एक यात्रा करके ह्यूस्टन आए हैं, एक उद्देश्य के साथ। बहाना चाहे जैसे बनपटी का हो, बहाना चाहे किसी का मिलने जुलने का हो, कोई भी एक निमित्त होता है इंसान को एक एटमॉस्फेयर से दूसरे एटमॉस्फेयर में जाना है। एक तरह के वातावरण में आप जीते रहे, एक मौका मिला पोल्यूशन का, और आप सबने डिसाइड किया कि हमें एक दूसरे एटमॉस्फेयर में जाना चाहिए। कल रात आप जैन सेंटर में थे, एक तरह का एटमॉस्फेयर वहाँ था। आपने भक्ति की, भावना की, पूजा की, आराधना की, अभ्यर्थना की, ये चीज़ें आप डेलस में भी करते आए हैं, बस कुछ डिफरेंस था जो आपने जैन सेंटर में किया। आज सुबह आप यहाँ आए, यहाँ का एटमॉस्फेयर देखा, यहाँ आपने साधक वात्सल्य का रूप देखा, और अब इस हॉल में बैठे हैं, ये भी एक अलग तरह का माहौल है। इंसान एक माहौल से दूसरे माहौल में जाता है कुछ लर्निंग के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए जाता है। यदि वो उद्देश्य नहीं होता तो घर में रहे, घर से बाहर रहे, मंदिर में रहे, मंदिर से बाहर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
लेकिन एक उद्देश्य होता है कि हम एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं तो हम क्यों जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं तो हम जो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका हमें प्रॉफिट क्या है। आप सब प्रॉफिट की बात ज्यादा जानते हैं, क्योंकि अपने बाल भाई ने कहा कि हमारे पास एक कार नहीं 9 कार है। तो आप कार की भाषा जानते हैं। यदि आप एक कार की भाषा जानते हैं तो आप वैल्यू जानते हैं कि 9 कार जिसके पास हो उसकी क्या वैल्यू हो सकती है, राइट। तो आपकी भाषा में है कि 9 कार, हमारे पास 9 कार है, वो 9 कार नमस्कार बन जाना चाहिए। जब दूसरे माहौल में आते हैं तो 9 कार नमस्कार बन जाना चाहिए, तब तो दूसरे माहौल में आए। यदि 9 कार ही रह जाती है तो दूसरे माहौल में आने का फायदा नहीं ले पाए। 9 कार नमस्कार बन जाए। नमस्कार करना बड़ा मुश्किल होता है। 9 कार मंत्र बोलते हैं पर नमस्कार कितने कर पाते हैं। ये हमारा नमस्कार महामंत्र है, जिसको हमारी देशी भाषा, एक देशी भाषा होती है जैसे प्राकृत होती है, वैसे देसी भाषा भी होती है, उसमें 9 कार वर्ड बन जाता है। तो आप 9 कार से 9 कार मत खरीदना कभी। ये हमारे पास 9 कार है तो हम तो 9 कार खरीदेंगे, मुश्किल हो जाए, क्योंकि उसके लिए उतनी जगह भी चाहिए। जितनी गाड़ियां खरीदो उतनी पार्किंग भी चाहिए। हमारा 9 कार नमस्कार बन जाए। नमस्कार करने के लिए अपने आप को हर तरह से तैयार करना पड़ता है। ये कंट्री आई की कंट्री है, मी आई वर्ल्ड, मी वर्ल्ड। हम जो जी रहे हैं वो मी वर्ल्ड में जी रहे हैं। ये जो अभी का माहौल है उसमें नमस्कार करना कितना मुश्किल है। एक यहाँ की लड़की अमेरिकन, वो गई थी राजस्थान। उस समय आपको पता होगा कि जनवरी फरवरी के महीने में हमारे यहाँ मर्यादा महोत्सव होता है। जैसे भारत का 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस होता है, वैसे मर्यादा महोत्सव होता है हमारे गुरु के सानिध्य में। तो वो वहाँ गई, सैकड़ों साधु साधना सुबह सुबह जाते हैं, गुरु पट्ट पर विराजते हैं, उनको वंदना करते हैं 3 बार, और गुरु जैसा कहते हैं तहत गुरुदेव जहां भेजते हैं चौमासे के लिए, उधर के लिए बिना कुछ क्वेश्चन किए हुए जो कहा माना। उसने कहा समनी जी कि अमेरिका में रहते हुए, वो न्यू जर्सी की थी इसलिए उसने कहा कि अमेरिका में रहते हुए और पर्टिकुलरली जो न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में रहते हैं उनका इतना नमन बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम लोग अहंकार से भरे थे। लेकिन मैं यहाँ देखती हूँ कि कोई पीएचडी समझी है, कोई पीएचडी साध्वी है, कोई कितना नमन से भरे पड़े। तो ये रिजल्ट है 9 कार का, नमस्कार का। पहला तो जैन धर्म में नमस्कार नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा, नमन नहीं सीखा तो जैन धर्म में कुछ नहीं सीखा। आपने सुना है कभी उत्तराध्ययन सूत्र का नाम सुना है? उसका पहला चैप्टर है विनय, पहला चैप्टर है विनय। जैन धर्म में जब गुरु शिष्य को समझाता है, सिखाता है, पढ़ाता है, ज्ञान देता है, तो पहला तत्व सिखाते हैं नमन, विनय। और विनय के रहस्य को सीख गया तो फिर वो तीर्थंकर वाली बात आ जाती है। मैं कहता हूँ अहंकारी और तीर्थंकर की भाषा में ज्यादा फर्क नहीं होता। अहंकारी की मैं करके बोलता है, मैं कहता हूँ, मैं करता हूँ, राइट। तीर्थंकर भी ऐसे तो नहीं कहेंगे, वो कहता है या उन्होंने कहने, मैं कहता हूँ। तो तीर्थंकर विग्राही और अहंकारी की भाषा ही, पर अहंकारी का मैं और तीर्थंकर के मैं में बड़ा फर्क होता है। वो तीर्थंकर का मैं है वो नमन से निकला है, और जो मैं नमन से निकलता है वो वीतरागता का नमन होता है, वीतरागता का मैं होता है। और जो मैं अहंकार से निकलता है, कितना बड़ा फर्क हो जाता है। अहंकार से निकला मैं और वीतराग से निकला मैं।
बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। तो हमारा नौकार नमन बन जाए, इसलिए हम एक गांव से दूसरे माहौल से में आते हैं, एक गांव से दूसरे गांव में आते हैं, एक माहौल से दूसरे माहौल में आते हैं कि हम कुछ सीख सके, हम जहां हैं उससे कुछ ऊपर उठने की कोशिश कर सके। हम जहां हैं वहां न रहे, कुछ पाने की कोशिश कर सकें। ये आपकी जर्नी जो है, आपकी ट्रैवलिंग जो है, आपकी जो ट्रिप आपने बनाई है, वो साधारण ट्रिप नहीं है, वो आपकी बहुत ही वैल्यूएबल ट्रिप है। ये एक हमारे जैन ट्रेडिशन की बात है कि एक संघ दूसरे संघ से मिलता है, एक संघ दूसरे संघ के साथ बैठता है, खाता पीता है। ये बहुत क्लोजनेस लाता है। जब रोटी बाटी का आदान प्रदान होता है, वहां पर नई चीजों की संभावनाएं बनती हैं। रोटी का आदान प्रदान और बेटी का आदान प्रदान इंसान को इंसान से जोड़ता है। तो बेटियां तो यहाँ पर अपने आप जाती हैं सब, तो उसका तो कोई बात ही ना करें अपन। लेकिन साथ में बैठ के भोजन करना, साथ में बैठ के भजन करना, साथ में बैठ करके कुछ विचार विमर्श करना, साथ में बैठ करके जीवन को एक्सप्लोर करना, ये चीजें इस माहौल को और तरोताजा बना देती हैं। फिर समझ आप जेबीपी में आए तो आपको यहाँ समझ जी का सानिध्य मिला, आप हमारे पास आए तो हमने सोचा कि हम जैन संघ का स्वागत कैसे करें, जैन संघ को हम क्या दें जिससे उनकी लाइफ में कुछ ऐसा लगे कि हमारी लाइफ के लिए उपयोगी है। हम वो चीज़ कभी नहीं देना चाहते हैं जो आप ले जा करके या तो ऐसे ही रख दो या फिर धीरे 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 वो आपके कूड़ेदान में चला जाए। हम आपको ऐसी चीज देना चाहते हैं जो आपके लाइफ टाइम काम आ सके, जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सके, और यही जीवन को नहीं, इस जीवन के आधार पर जो आगे के जीवन हैं उन पे भी कोई उसका इफेक्ट हो सके। तो हम एक आपके लिए गिफ्ट लाए हैं। वो गिफ्ट है कि आप एक दिन को कैसे जिए, एक दिन को कैसे जिए, आप अपने 24 घंटा को कैसे जिए। उसके लिए छोटी छोटी बातें हैं, यदि हम आपको बताएंगे, ऐसे गिफ्ट हम आपको दे रहे हैं। लेकिन आज के लिए फ्रीडम भी है कि जिसको गिफ्ट नहीं चाहिए वो यहाँ अच्छी तरह से छोड़ के भी जा सकते हैं। लेकिन देना हमारा काम, लेना फिर आपके बिजनेस है, वो आप जानेंगे, राइट। तो पहली बात हम आपको बता रहे हैं कि हम सूर्योदय की बात करते हैं। सूर्योदय, हमारा जीवन सूर्योदय से शुरू होता है, सनराइज। हम जब नींद से उठते हैं, बिस्तर से उठते हैं, तो हमें कैसे उठना चाहिए। बिस्तर से तो सभी उठते हैं, राइट। नींद से सभी जागते हैं। सबसे पहले उठते ही हमें आंख बंद करके बैठना चाहिए। किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना, अपने पास में सोए उसका मुंह नहीं देखना। आंख बंद करके हमें सबसे पहले नवकार मंत्र का ध्यान करना चाहिए। नवकार मंत्र का ध्यान। उसके बाद हमें तीर्थंकरों की स्तुति मन में, जो भी तीर्थंकर के नाम आते हो तो उनको याद करना चाहिए, उनके आभा मंडल को याद करना चाहिए, उनकी एनर्जी को याद करना चाहिए, उनके आशीर्वाद को याद करना चाहिए। और यदि 24 तीर्थंकर के नाम ना याद हो तो भगवान महावीर को याद करना चाहिए। उसके बाद अपने जीवन में आपके गुरु हो तो गुरु का स्मरण करना चाहिए, और नेक्स्ट मोमेंट में आप जाग गए हो इस पे ध्यान देना चाहिए। 2 मिनट का काम, और आप फास्ट आपका दिमाग चलता हो तो 1 मिनट का काम, ज्यादा नहीं है। नवकार मंत्र के गिनते 5 सेकंड लगते, उसके बाद तीर्थंकरों को याद करते रहे 10 सेकंड 15 सेकंड करते, और उसके बाद गुरु को याद करते 5 सेकंड, और उसके बाद अब मैं जाग गया हूँ।
ये भी तो अनुभूति होनी चाहिए। जागते हुए जागना चाहिए, सोते हुए क्या जागे। नींद से उठते हैं तो एकदम एकदम नहीं जागते, हमें उसको एप्रिशिएट करना चाहिए कि अब मेरी बॉडी का कण-कण, मेरे माइंड का कण-कण जाग गया। उस जागृति का अनुभव करना चाहिए, नहीं तो नींद में जाग जाते हैं। नींद में उठ के आ जाते हैं बाहर रूम से, नींद में स्नान कर लेते हैं, जागने का अनुभव ही नहीं हुआ अभी। वो जागने का हमारा अनुभव होना चाहिए, पहली बात। और जो ऐसा करता है उसका दिमाग कभी पूरा नहीं होता। हम आपको डरा दें थोड़ा सा, क्योंकि बुढ़ापे से डर लगता है ना। इंसान सब कुछ चलेगा, सहेगा, दुख कष्ट, पर बुरा नहीं होना होता, बुरे नहीं होना चाहिए। तो जो इंसान जागरण का अनुभव करता रहता है वो कभी भी बुरा नहीं होगा। शर्तिया बात, एवरी डे आप जागने का एहसास ले लो, मैं जाग गया हूं, मेरा शरीर का कण कण जाग गया है, मेरा मन जाग गया है। यदि ऐसी अनुभूति आपके हो जाती है तो फिर आप बिस्तर से उठो, उठते ही आप परिवार वालों से मिलते हो, पत्नी से मिलते हो, पत्नी भी जागी है, पत्नी से मिलते हो, बच्चों से मिलते हो, राइट। तो आप सबको उठ करके जय जिनेंद्र को स्माइल के साथ ग्रीट करो। कैसी भी नींद आए, अच्छी आए, बुरी आए, कोई बात नहीं, लेकिन आर्टिफिशियल स्माइल तो भी हो करो, धीरे धीरे नेचुरल बन जाए। आप हंसने का मूड नहीं, राइट, रात को बुरा सपना गया, हंसने का मूड नहीं, फिर भी एक दूसरे को देखते ही स्माइल करो। धीरे धीरे आपको वो स्माइल नेचुरल हो जाएगी। इससे क्या होगा, आपको ब्यूटी पार्लर जाना पड़ता है, राइट, फिर भी चेहरे पर स्टिफनेस रहती है, आपका चेहरा खिल जाएगा फूल की तरह। ज्यादा ब्यूटी पार्लर के पास जाने की जरूरत नहीं, रोजीना हंसो, सुबह सवेरे एक दूसरे को देख करके, अपने आप नहीं, एक दूसरे को देख करके, इससे एक दूसरे को आप शांति दे रहे हो, आनंद दे रहे हो, खुशी दे रहे हो, स्माइल दे रहे हो। तो फूल की तरह पियो। उसके बाद क्या करोगे, बाथरूम में जाते हो स्नान करने के लिए, आप मेक श्योर करो आपके बाथरूम में कोई एनिमल प्रोडक्ट की चीज तो नहीं है। आप जो यूज करते हो वो एनिमल प्रोडक्ट तो नहीं है। आप जो सोप, शैम्पू या जो भी लोशन यूज करते हो उनको देखना चाहिए। जैन धर्म में एनिमल जो होते हैं उनको अपन जितना अवॉइड कर सके उतना करें। यदि उसमें अवेयरनेस नहीं है और आप उससे स्नान कर रहे हो तो स्नान के साथ बॉडी तो साफ कर लोगे, लेकिन अंदर मैल चला जाएगा, बॉडी का मैल सारा अंदर चला जाएगा, आत्मा पे हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात हमें ध्यान देनी चाहिए कि हम वाटर कितना यूज करते हैं। खोल के बैठ गए शावर में, या बैठ आ रहा है पानी, बढ़िया लग रहा है, कर रहे हैं, करते हैं मस्ती से। जैन धर्म में संयम ही जीवन है। जैन धर्म में आनंद, फिजिकल आनंद धर्म नहीं है, संयम ही जीवन है। तो पानी को हम एकदम मॉडरेटली यूज करें। हमारा काम है संयम से जीना। उसके बाद में आप क्या करते हो, ब्रेकफास्ट लेते हो, सब लेते हैं ना ब्रेकफास्ट, चाहे चाय भी पियो दो। यदि सनराइज हो गया है, आपके पास जो चाय, दूध, सीरियल, बिस्किट जो भी है वो प्रासुक है, तो आंख बंद करके साधु को अर्पण करो। भावना से भावना करो कि मुझे मेरा सौभाग्य हो, आज कोई मुझे साधु मुनिराज का, सतियों का, गुरुदेव का सानिध्य मिले और मैं अपने हाथ से इसमें से जो मेरे पास उपलब्ध है उसमें से मैं कुछ दान दे सकूं। भावना करो, हाथ जोड़ लो और उसके बाद अपना काम पूरा। भावना से कितना बड़ा फायदा होता है। जागरूकता की बात है, खाली जागरूकता कितना 5 सेकंड 10 सेकंड, बट जागरूकता से आपके कितने अच्छे कर्म आप एक्यूमुलेट कर लेते हो और कितने बुरे कर्मों को शेड कर लेते हो पता ही नहीं चलेगा। ये उसके बाद में आप ऑफिस जाते हो कार ड्राइव करके, आप में से सारे तो रिटायर्ड है नहीं,
लेकिन रिटायर है फिर भी आप ड्राइव तो करते ही हो, दिन में काम तो पड़ता ही है। तो आप मोबाइल पे बात मत करो। आधा काम ऑफिस का मोबाइल पे हो जाता है, राइट? आते जाते जो आधे घंटा 1 घंटा मिलता है, आधा काम हो जाता है। बस उस समय ड्राइविंग करते हुए आप कभी भी बात ना करो। इससे क्या फायदा होगा? आप तो सेफली ड्राइव करें, लेकिन आपको पता रहेगा कि आपके आसपास वाला सेफली ड्राइव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दोनों की सेफली ड्राइविंग ही आपको सेफ रख सकती है, राइट? यदि आप तो सेफली ड्राइव कर रहे हो और पास वाला नहीं करे तो ठोक देता है। सेफ्टी के लिए जरूरी है कि आप जब ड्राइव करते हो तो ड्राइव पे कंसंट्रेट करो। ऑफिस गए, ऑफिस में जाते ही आप पहले नवकार मंत्र से या अपना कोई मंत्र गौतम स्वामी के नाम से या अपना पर्टिकुलर कोई मंत्र है जो आपकी समृद्धि के लिए है और आपके पास ऑलरेडी है वो मंत्र, उसके साथ आप अपने ऑफिस में जो आपका बिजनेस है उसमें एंटर करो, उसको अनलॉक करते समय। अब आप बैठोगे चेयर पे तो अच्छी भावना से गौतम स्वामी के नाम से लेके बैठो। आप मीटिंग भी करते हो ऑफिस में, तो मीटिंग करने से पहले 3 बार लंबा श्वास लो, लंबा श्वास छोड़ो और मन में संकल्प करो कि आपकी मीटिंग आपके अनुसार ही जाएगी, आप जैसे सोचते हो वैसी जाएगी। ये जो मैं प्रक्रिया बता रही हूँ ना, साधारण प्रक्रियाएं नहीं हैं। जो व्यक्ति श्वास की इम्पोर्टेंस समझता है, जानता है, वही समझ सकता है इसके अनुभव को। जब भी आप लोगों के बीच में कभी भी आप मीटिंग करो, बिजनेस की मीटिंग करो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की मीटिंग करो, आप लंबा श्वास लो, लंबा श्वास छोड़ो और हर श्वास के साथ संकल्प करो कि मेरी मीटिंग मेरे अनुकूल जाएगी। आप देखना कितना बड़ा उसमें आपको डिफरेंस फील होता है। ऑफिस में उसके बाद आता है आपका ऑफिस में लंच करने का टाइम, तो टाइम से लंच करो ताकि बॉडी को एनर्जी मिलती रहे। लंच में देखो आप कि आपका वेजिटेरियन लंच है कि नहीं, और साथ में वाइन तो नहीं ले रहे आप, ये जरूर ध्यान दो, क्योंकि जैन धर्म ने 3 बातें फूड के लिए बताई। एक बात है जो रेड लाइट में है, दूसरी बात है जो येलो लाइट में है, तीसरी बात ग्रीन लाइट में। मीट एंड वाइन ये दोनों रेड लाइट में। खाली मीट नहीं, क्या हम मीट नहीं खाते हैं, वाइन तो चलता है। जैन धर्म में वाइन और मीट दोनों रेड लाइट में है। फिर जितने भी रूट्स हैं वो येलो लाइट में है, और फिर बाकी जितना है वो ग्रीन लाइट। तो हम समझें कि आप मेरे सामने जो बैठे हैं मोस्टली आप जैन हैं, और जैन कोई नहीं भी है, एक आपको देख करके जैन बन सकता है, राइट? जैन को देख के जैन बनेगा ना। खरबूजे को देख के रंग बदलता है। जैन की लाइफस्टाइल देख करके जो जैन की लाइफस्टाइल में नहीं है वो भी रंग बदलेगा ना। पर हमने कई बार देखा है जैन लोग लाइफस्टाइल बदलने में लगे हुए हैं, दूसरे उनको देख के बदले या नहीं बदले इसके प्रति इतना कुछ है नहीं। लेकिन इतनी बढ़िया लाइफ फिलॉसफी है जैन रिलीजन में। रिलीजन नहीं है, ये एक लाइफ की फिलॉसफी है। तो उसको हम इतना अपने भीतर डेवलप करें कि हमको देख करके दूसरे फॉलो करने शुरू कर दें। तो उसके बाद हम देखें कि हमारा लंच में वेजिटेरियन फूड और वाइन नहीं, वाइन तो नहीं, और है में वेजिटेरियन फूड है कि नहीं, ये हम ध्यान दें। वापस घर आते समय नो फोन कॉल्स, ड्राइविंग के समय, और घर आते ही पहला काम क्या करें आप? ऑफिस से रवाना होते आप ध्यान रखें कि आपकी ब्रीफकेस एक आप ऑफिस में छोड़ के आए, जो बिजनेस की वरीज हैं, जो टेंशन है वो ऑफिस में ही छोड़ के आए, और घर पे आप वो ब्रीफकेस लाएं जिसमें कागज पत्र होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो जरूरी है कर ले जाएं। घर पे आते ही आप सोफा पे बैठ के पहले ना तो किसी से बात करो, न कि कुछ भी नहीं करो। पहले आकर के आपको लोगस से आता हो तो आप 4 लोगस से गिने, 4 बार, ज्यादा टाइम नहीं। और लोगस से नहीं आता हो तो 25 बार लंबा श्वास ले, लंबा श्वास छोड़े,
क्या होगा इससे? इससे काउस शब्द होगा जो भगवान महावीर किया करते। काउस शब्द का क्या फायदा कि जो डस्ट बिजनेस के दौरान मन वचन काया में आई है, उस डस्ट को हम साफ कर रहे हैं। काउस किया, अब आकर के जो भी आपको करना हो अच्छी तरह से बात करो, क्योंकि इतना हो जाता है तो सारी ऑफिस की वरीज भी प्रैक्टिकली खत्म हो जाती है और घर में आकर के दोनों जन पति पत्नी आए हो तो एंजॉय करो एक दूसरे के टाइम को, वरना तू भी आया थका, मैं भी आया थका, टक टक शुरू है। तो दोनों जन पहले काउंसल कर लो, उसके बाद में खाना पीना जो भी करना है साथ में बैठ के खाओ। डिनर के समय यदि सनसेट नहीं हुआ है तो फिर गुरुदेव को भावना कर सकते हो, सनसेट हो गया है तो भावना मत करना कभी भी। रात के टाइम में भावना नहीं करना कि मेरा फूल मैं गुरु को बहराती हूँ, ऐसा नहीं करना। फिर उसके बाद आप सोने के लिए जाते हैं, आपका काम और भी बाकी रहा वो कर लिया, आप सोने के लिए जाते हो तो आज के दिन की सारी रंजिश है जिसके साथ भी उसको भूल करके सोना है। पति पत्नी के साथ भी जो है, क्योंकि अब बेडरूम में तुम दो ही हो तो एक दूसरे से टक टक भी पॉसिबल है, झगड़ा भी पॉसिबल है, मनमुटाव भी पॉसिबल है, हॉट डिस्कशन भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। सोते समय फॉरगिवनेस, जैन धर्म में हर दिन फॉरगिवनेस का है, एक दिन नहीं है प्रजूषणा का जो अभी आपने किया है। एक दिन वो तो एक दिन कैसे है कि कोने में कहीं कहीं कुछ रह गई और डस्ट, उसको साफ करने का रियल तो एवरीडे का। तो पति पत्नी के साथ कुछ भी बात हो गई है, ऊंच नीच की जो भी बात हो गई है, रिस्पेक्टफुली एक दूसरे के साथ प्रेम से बात करके, फॉरगिवनेस करके, सब कुछ जो हुआ उसको दफन करके अब सोना है तो आपको नींद में सपने नहीं आएंगे। यदि उस चीज के साथ सोए, टीवी देखते देखते सोए तो दिमाग में तो वही जा रहा है जो आंखों से देखा है। हमारी मेमोरी पिक्चर मेमोरी है, हमारा माइंड पिक्चर को रिसीव करता है, साइंटिफिक बात है। हम जो पिक्चर आंखों से लेते लेते सोएंगे वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, फिर वो ही तो सामने आता है। इसलिए सोते समय हम ध्यान रखें कि हम सोते समय उन्हीं विचारों में ना सोए, बड़ी प्रफुल्लता के साथ क्षमा करके, अहंकार को छोड़ करके, नमस्कार में जाकर के, नमस्कार किसको, पति पत्नी को नहीं करना है, ना करो कोई बात नहीं, वीतरागता की नमस्कार। उस नमस्कार मने नमन में जाएंगे तो ही फॉरगिव कर पाएंगे ना, अकड़ के रहने वाले थोड़ी फॉरगिव कर पाएंगे। तो उस नमन में जाकर के, नमस्कार में जाकर के फिर हम अपने आनंद से सोएं। लास्ट जब आंखें बंद करनी है सोने के लिए तो आनंद में होने चाहिए ताकि हमारी नींद अच्छी हो। यदि नींद अच्छी होगी सपने नहीं आएंगे, सपने नहीं आएंगे तो दूसरे दिन का सूर्योदय एक नया सूर्योदय होगा। तो ये सूर्योदय से सूर्योदय का एक दिन आप कैसे जिए वो हमने आपको बताया है, हम आपको गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं। जेवीबी में आए आप, यहाँ टाइम स्पेंड किया, जाते समय हम आपको ये गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं। आप आए, बड़ी तसल्ली हुई, अच्छा लगा। ऐसे ही संग आते जाते रहें, आपस में मिलते जुलते रहें, इससे जैन धर्म की प्रभावना बढ़ेगी, इससे दूसरे लोग भी देखेंगे कभी, सुनेंगे कभी, समझेंगे कभी, तो उनमें भी अच्छी जागृति होगी। इसी बात के साथ